5th March 1959. This is the house where Shivraj Singh Chauhan was born in his ancestral Jeth village in Budni district. He went on to become the chief minister in 1990. It's the first time that he won the Budni seat. He was just 31 years of age at that time. After that, he went to Vidisha to become an MP. But he returned to Budni in 2006 when he contested a bypoll, won from here and became the chief minister of Madhya Pradesh. Since then, Mr. Shivraj Singh Chauhan has been the MLA from this seat continuously. He's fighting his 6th election currently from Budni, and you can see these small lanes of this Jait village and this house of Mr. Shivraj Singh Chauhan where he was born. Mr. Chauhan still takes pride in his simple roots. And one of these signature schemes, which in a way has kept him in the hunt for this election, is the Ladli Behna Yojana, in which money is being transferred to women voters every month. Let us speak to a few women here. मैडम, जो मुख्यमंत्री जी पैसा भेज रहे हैं 1250 रुपए, मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है। आज मिला है? आज शायद सुना था आज ही ट्रांसफर होना है और आज आ गया है आज का पैसा। अच्छा, तो उससे कितनी मदद हो रही है आपको लग रहा है? मदद हो पाती है मतलब घर के कुछ काम काज? और क्या नहीं, गुड़िया खरीद ले में ये टिकी बुंदी है। हाँ, अच्छा। तो his woman is saying that some works of the house get done if when this money comes. And the Ladli Behna Yojana in fact has been a game changer for Shivraj Singh Chauhan in his present term. This scheme was started about 4 months back, started with 1,000 rupee payout per month, and now it's been raised to 1,250. And today, in fact, 1,250 rupees has been transferred to women across the state, 1.3 crore women. Let us speak to more women here, and this is the house just nearby to where Mr. Shivraj Singh Chauhan's ancestral house is. मैडम, जो मुख्यमंत्री जी पैसा भेज रहे हैं लाडली बहना का 1250 रुपए, आज मिला है आपको? हाँ, मिले भैया, मिले हैं। हाँ। तो क्या करेंगे उस पैसे का? मतलब अभी 3-4 महीने से तो आ रहा है, तो उस पैसे का क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? खर्च देते हैं कि घर के कामों में काम आता है? कल्ले में धर्म पुण्य कछु भी कर लो, कुछ भी कर लो और का। तो ये इससे पहले पैसा नहीं आता था। बीजेपी बोल रही है कि शिवराज सिंह जी की सरकार चलेगी तो पैसा बंद हो जाएगा। तो आपको लगता है इसी वजह से शिवराज जी जीतेंगे इलेक्शन? आप किसको वोट डालेंगे? भैया डाल, हम किसे डाल? किन्हें डालेंगी? शिवराज भैया। शिवराज भैया को। The woman is saying that she's got the money today, in fact, which Shivraj Singh Chauhan has sent. Let us speak to a woman who's standing there who is trying to speak something to us as well. तो मैडम, जो मुख्यमंत्री जी पैसा भेज रहे हैं वो आपको मिल रहा है? 1250 रुपए जो कह रहे हैं सीधे खाते में आ रहा है? आ रहा है। तो आज भी आया है, आज कह रहे थे एक और किस्त आएगा। आ गया है। तो क्या करेंगे इस पैसे का? करेंगे साड़ी ले ले में, खर्च कर ले में, मोड़ा मोड़ी कपड़ा तलवाए, खिलखिलौना लगा दे में। तो साड़ी खरीद रही है, घर का राशन आ जाता है, बच्चों के लिए कुछ आ जाता है, स्कूल का सामान? अरे भैया, हम 2 तो जाने हैं, उसके जाने थोड़ी है, 2 जाने ले ले में कपड़ा, भैया के नाव की साड़ी पहने हैं, और भैया सब चीज ले ले में, गंजी ले ले में, कोपल ले लो, 800 में कछु ले लो। Interesting woman here saying that she's bought a sari and she's bought other stuff for her kids here in the house. And Shivraj Bhaiya, that is the term that women use here, and that is the term that Mr. Shivraj has also been using when he says that I am a brother to nearly 1.3 crore women in the state. And just around the Shivraj Singh Chauhan's ancestral house, you can see women saying that this is the scheme which has brought them in a way some financial independence. And will this scheme be the game changer for Shivraj Singh Chauhan in this election remains to be seen when the state votes on November the 17th. This is the Narmada River Ghat in Budni, and Budni is the seat of Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. He's contesting this seat for the 6th time running. He was just 31 years of age when he first won this seat in 1990. Then he returned to this seat in 2006 to win it in a bypoll, and since then, this seat has been the bastion of Shivraj Singh Chauhan. But will Shivraj Singh Chauhan be the chief minister again if the BJP wins the state? शिवराज जी इतने समय से यहाँ विधायक हैं, अब दोबारा लड़ रहे हैं, पर बड़ी बात यह है कि अगर शिवराज जी जीत भी जाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे भाजपा जीतती है तो? वैसे तो मुख्यमंत्री उनने जो काम किया है उसके अनुसार वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन इस बार जो सुनने में आ रहा है कि
जो पार्टी नेतृत्व है वो उनको जिम्मेदारी नहीं देगी। ये सब मतलब समाचार और न्यूज़ों से हमें प्राप्त हुआ है। पर ऐसा आपको क्यों लगा? शिवराज जी आदमी तो भले हैं, सब लोग कहते हैं आदमी बहुत भले हैं, पर अब थोड़ा सा उनको देख देख के थक गए। क्या यही कारण है कि पार्टी आपको लग रहा है कि कोई नया नेता को आगे किया जाए? हाँ, मतलब लोगों को लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि वो जो अच्छा काम करता है उसे मतलब डबल से आने का अधिकार है। उन्होंने जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि कहीं से उनको कोई विरोध नहीं है। जी। आपको भी भाई साहब ये, क्योंकि ये बात काफी वोटर में यहाँ पे है कि शिवराज जी अब इतने 18 साल से मुख्यमंत्री हो गए, कुछ जो नई जनरेशन है उसने तो किसी और को देखा ही नहीं। जब से पैदा हुए शिवराज जी को ही मुख्यमंत्री देखा। आपको लगता है वो एक कारण है कि अब शिवराज जी से थोड़ी सी थकान वोटर को लग रही है? देखिए सर, थकान तो वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र जो था इसमें मुख्यमंत्री जानते नहीं थे क्या होता है मुख्यमंत्री। लेकिन जिस समय से शिवराज सिंह जी बने हैं तब से तो एहसास हुआ है कि मुख्यमंत्री ऐसे भी होते हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री जानते नहीं थे लोग कैसे मुख्यमंत्री होते हैं। और ये जो बड़े बड़े नेता है कमलनाथ जी, ये तो इधर आते ही नहीं थे। इधर तो ये लोगों का आगमन ही नहीं हुआ करता था, तो जानते नहीं थे कि मुख्यमंत्री क्या चीज़ होती है, मुख्यमंत्री कैसे होते हैं। तो विषय ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को रहना चाहिए। बढ़िया कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है उनका और बढ़िया काम है। और जो नर्मदा मैया के आशीर्वाद से उनको फिर बनना चाहिए और उन्हीं को मुख्यमंत्री पद पे बिठाना चाहिए। अब बाकी तो ये लोग बाग बोलते हैं कि मतलब ऊब गए हैं, थक गए हैं, ऐसा नहीं है। देखो, कहते हैं कोई चीज़ ऐसी होती बार बार देखो फिर भी देखने का मन होता है। लेकिन व्यक्तिगत क्या होता है कि जो लोग बाग बोलते हैं देख देखो नया आएगा, उसे भी देख के फिर एक बार एक कहोगे कि नहीं अब हम देख लेंगे, कोई आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जो कार्य अच्छा करता है उन्हीं को आना चाहिए, चाहे वो पुराना चाहे कितना हो। घर में पिताजी घर को चलाते हैं तो ये मतलब थोड़ी रहता है कि पिताजी को निकाल दिया जाए। इसी प्रकार जो है शिवराज सिंह जी चौहान जी बहुत बढ़िया हैं, वो बढ़िया काम करते हैं और उन्हीं को आना चाहिए और उन्हीं को कुर्सी पे बैठना चाहिए। Both the locals there of Budni saying very interesting thing that though Shivraj Singh has been a CM for a long time, they still feel that though if the party is not backing him maybe for a next term, but still he remains extremely popular, and that is the reason that he should continue as the chief minister if the BJP wins. Let's speak to another gentleman here who's sitting. शिवराज जी के जैसे दोनों भाई साहब ने बोला कि काम बहुत किए हैं, पॉपुलर भी रहे हैं, अब थोड़ा सा पार्टी को लग रहा है कि नहीं ज्यादा साल हो गया, किसी नए चेहरे को दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं कि पार्टी क्योंकि उनको प्रोजेक्ट नहीं कर रही है इससे पार्टी को नुकसान ना हो जाएगा इलेक्शन में? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि उनसे अच्छा मुख्यमंत्री एमपी में ना हुआ है ना होगा, वही बेहतर है। जी, क्योंकि आपने तो कई साल पहले पुराना दिग्विजय सिंह जी का भी दौर देखा है, 2003 से पहले का लोगों ने यहाँ तो पे। हमारा दिग्विजय सिंह के दौर में तो बिल्कुल 8 से 12 हमारे गांव में लाइट आई नहीं करता थी, और जो कटौती का समय था 8 से 12 कभी कभी 2-3 बज जाया करता था लाइट आ जाती, लेकिन लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता था। और मामा जब से आए हैं जब से हर चीज पर्याप्त है। और ये जो नई उन्होंने एक स्कीम शुरू की, लाडली वाली जो स्कीम थी जिसमें औरतों को पैसा देना शुरू किया हर महीना 1250 रुपए, आज भी आ रहा है, आज भी वो भेजेंगे। आपको लगता है इससे भी आपके घर में भी महिलाएं होंगी तो उससे भी फर्क पड़ा है काफी? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जी, तो महिलाओं से कहीं जो उनके हस्बैंड है वो पैसा वो लेते तो नहीं है कि महिलाओं के पास ही रहता है? नहीं, महिलाएं खुश हैं मामा से, महिलाएं खुश हैं, 100% खुश हैं। Interesting that people here saying that even the woman voter is happy with Shivraj Singh Chauhan because of the CM Ladli Behna Yojana, under which in fact an installment of rupees 1250 is being transferred today by the Chief Minister to women in Budni and other parts of the state. शिवराज जी इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें थोड़ी कमी भी रह गई हो शायद, जिससे लोग थोड़ा बहुत नाराज हो? पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता है, ऐसा है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, और आगे भी करेंगे। जो बेटियों को सौगात है, लाडली बहना योजना है, और जो मुख्यमंत्री आवास योजना का उन्होंने अच्छा लाभ दिया है। थोड़ा जनता को बस यही है कि जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी हटे, बस वही हमारा एक मुद्दा है। जो युवा हैं जो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, इतना मतलब कंपटीशन में लगे हैं और आज उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो उसी बेरोजगारी को हटाई जाए। बस एक ही उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा कहना है कि बेरोजगारी पर थोड़ा ध्यान दें।
18 साल से मुख्यमंत्री हैं। अब इस बार भाजपा उनको एक तरह से ये नहीं कह रही कि जीते तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये क्लियरिटी से नहीं बोला भाजपा ने, कई सारे चेहरे उतार दिए। तो आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री पॉपुलर हैं बट ऐसा भाजपा क्यों उन पे दोबारा एक तरह से मुख्यमंत्री शायद ना बनाए उनको, ऐसा हो सकता है? नहीं, उनको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो एमपी में सरकार आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो सीएम के पद होता है ना, वो उनके लायक ही है। क्यों? कि उनमें जो बोलने में एक्सपर्ट है, काम करने में एक्सपर्ट है। बाकी जो है ना चेहरा, मुझे लगता नहीं है कि सीएम लायक है। अगर सीएम उन्हें नहीं बनाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सीट आना मुश्किल हो जाएगा जी, ये है। और ये भी एक बात है कि मध्य प्रदेश में ये भी हिंदुत्व का भी मुद्दा काफी स्ट्रांग है। मैंने देखा कई लोगों से बात की, राम मंदिर के भी पोस्टर लगे हैं कई जगह पे। तो आपको लगता है कि बीजेपी इसलिए भी यहाँ पे दौड़ में अभी भी है क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा भी है? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो क्या है कि जो काम होना है वो होके रहेगा। देखो, सनातन तो आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो मंदिर पहले थे वो तो बनना है। ये जरूरी थोड़ी है कि नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि बीजेपी का ये रहा है कि उनने फटाफट उसको काम को करवाने में आगे बढ़ाया। कांग्रेस के राज में क्या था कि वो काम होता ही नहीं था। बुधनी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सहज सरल मृदुभाषी कर्मठ निष्ठावान शिवराज सिंह जी चौहान, जिसका है कमल निशान। At Shivraj Singh Chauhan, the Chief Minister's election office here in Budni, group of his supporters at hard at work to ensure a big victory for the Chief Minister. मुख्यमंत्री जी बुधनी से छठी बार लड़ रहे हैं। 1990 में पहली बार जीते थे जब सिर्फ 31 साल के थे। पर इस बार ये फर्क ये है कि इस बार वो मुख्यमंत्री तो है, पर भाजपा ये नहीं कह रही कि जीते तो भी वो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। उस पर सस्पेंस कायम है। तो आपको लगता है उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा पार्टी को? मतलब जिसे मुख्यमंत्री बनना ही है उसे बार बार कहने की जरूरत क्या है? मान लो जो पिताजी है, अगर कहीं बल्दियत लिखना तो लिख देंगे, उन्हीं पिताजी तो पिताजी हैं। इसलिए बार बार मुख्यमंत्री कहने की बात नहीं। जो मुख्यमंत्री था, है और आगे भी रहेंगे जी, भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, अन्यथा कोई नहीं होंगे। क्योंकि और कई एमपीज को इस बार टिकट दे दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी सीनियर लीडर हैं, प्रहलाद पटेल भी हैं फील्ड में। तो ऐसी एक बात चल पड़ी कि क्या कोई नए चेहरे की तलाश तो नहीं कर रही बीजेपी? 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। नहीं, अभी कोई नए चेहरे की वो नहीं है। वो तो पार्टी की रणनीति कोई होगी, उसके अंतर्गत ये बड़े नेताओं को दिया गया। पर मुख्यमंत्री तो शिवराज जी ही रहेंगे मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जी, एक ये भी बात आती है कि क्योंकि 18 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं और काफी समय से कई लोगों ने तो मुख्यमंत्री उन्हीं को देखा होगा जो पहले टाइम वोटर हुए, तो क्या लोगों में थोड़ी सी थकान हो गई उनके चेहरे को लेके? कुछ लोग कहते हैं कि अब आदमी तो बहुत अच्छे हैं बट बस देख देख के थोड़ा थक गए। नहीं, कोई नहीं थका, और उन्हें देख के ऊर्जा बढ़ जाती है। नए लोगों में उत्साह बढ़ जाता है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को देख के। थकान बिल्कुल नहीं है और वही मुख्यमंत्री रहेंगे जी। अभी शाम को अगर आप आते तो युवा लोग जनसंपर्क कर रहे हैं बगैर कहे, किसी ने उन्हें आदेश नहीं किया, निर्देशित नहीं किया। इसके बाद वो पूरे शहर में जनसंपर्क कर रहे हैं जी। तो क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने मुख्यमंत्री आए थे, उसके बाद तो बुधनी में कैंपेन करनी है, तो आपको लगता है जरूरत नहीं यहाँ पे कैंपेन की मुख्यमंत्री की? कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बच्चा शिवराज सिंह चौहान है, और शिवराज सिंह चौहान के ये केवल विधानसभा नहीं है, उनका परिवार है। और जहाँ पे एक एक मतदाता उनका परिवार है, अपना है। इसलिए उनके लिए, और जैसी रोज जनता ने सबने हाथ उठा कह दिया था कि भाई साहब आप जो है पूरा प्रदेश की 129 सीट देखिएगा और बुधनी विधानसभा तो आपका परिवार देखेगा, आपके कार्यकर्ता देखेंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अभी आप कह रहे थे थकान की बात, तो थकान की बात तो ये है जब आदमी को अनुभव नहीं होता, वो काम करता है तो उसके चेहरे पर थकान दिखती। और जब आदमी एक्सपर्ट हो जाता है, उसे अनुभव हो जाता है, हर काम करना उसका आसान हो जाता है। इसलिए उसे ज़्यादा श्रम करने की ज़रूरत नहीं है और न थकान की ज़रूरत। आप मान लो कि ये काम कर रहे हैं मीडिया का, अब मीडिया का काम कर रहे हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि हमें किस व्यक्ति से कौन सा क्वेश्चन करना है, उससे क्या कहलवाना। परंतु आपको इतना अनुभव हो गया है कि हम अगर आपको ज्ञान दें तो वो ज्ञान आपके लिए ज्ञान नहीं है। परंतु हम इतने समय से कर रहे हैं। मैं सन 80 से भाजपा में हूँ, सन 80 से भाजपा का काम कर रहा हूँ। पहली बार जब वोटिंग मैंने करी तो भाजपा को की थी, जब से लेके आज तक कर रहा हूँ मैं। तो सन 90 और सन 90 से पहले भी राघव जी यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद ये तो, परंतु उसके पहले ये पूरा क्षेत्र हमारा बैकवर्ड एरिया था, पूरा कांग्रेसी था।
अगर इसको भाजपा में बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय रमाकांत जी भार्गव ने गांव-गांव जाके, घर-घर जाके, अलग जगह के क्षेत्र को जो है भाजपा में बनाया है। इसीलिए और क्षेत्र की ये है, मान लो सीएम साहब हैं, पूरा प्रदेश देखते हैं, परंतु उन्हें मध्य प्रदेश में बुधनी से इतने निश्चिंत रहते हैं कि उन्हें जहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। और उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ की जो विधानसभा में वोटरों की संख्या उतनी नहीं है जो अन्य विधानसभा में होती है, कहीं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यहाँ पे इतनी संख्या नहीं होती। अगर वोटिंग के अनुपात से अगर हम देखेंगे तो प्रदेश में भी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान होते हैं।